Okay, so I welcome you once again. Now we are going to move on to the second type, that is nothing but solution of triangles. मतलब triangle से solution find करना, मतलब triangle को solve करना. Sometimes it is also known as solving the triangle. तो solution of triangle का short form में लिख देता हूँ, solution of triangles, sometimes also known as solving the triangles. Now just pay attention, let me explain, then we will write it down together. अब देखो किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, जस्ट पे अटेंशन एवरीवन, विल राइट इट डाउन टुगेदर, डोंट वरी. किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, तीन एंगल्स होते हैं. तो लेट अस टेक एंगल ए बी एंड सी. ठीक है, तो टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्वड ओवर हियर. so there are 3 angles A, B and C. Now opposite to angle A is side BC. Opposite to angle A is side BC. So side BC we will denote by small a. Side BC we will denote by small a. ये notations हमें याद रखना है. Opposite to angle B is side AC and side AC को हम नाम दे देंगे small b. So opposite to angle B is side B and opposite to angle C, थोड़ा ये बड़ा सी लिख देता हूँ मैं. Opposite to angle C is nothing but side C, small c I have written. So there are total 6 elements involved in this. Total 6 elements हैं. 6 elements are involved in this. So which are the 6 elements? So first तो है sides. So चलो write down, draw this rough diagram for your reference. The 6 elements are first of all the 3 sides. Which are the 3 sides? So side A, side B and side C. ये 3 elements हैं. These are the 3 sides. ठीक है, और फिर इसमें 3 एंगल्स है. देयर आर 3 एंगल्स इन्वॉल्व. So which are the 3 angles? So angle A, angle B and angle C involved in it. ठीक है, अब ये जो छोटा वाला C है उसको मैंने थोड़ा सा पीछे कर्व दे दिया है और बड़ा वाला C है उसको मैंने सिंपल C रखा है, कैपिटल C स्मॉल c. So I repeat, in any triangle, this is in any triangle, isosceles triangle हो, right angle triangle हो, equilateral triangle हो, whatever it is. So in any triangle ABC, opposite to angle A is side A, opposite to angle B is side B and opposite to angle C is side C. मतलब जो लेंथ BC है उसको हमने A से डिनोट किया है. लेंथ AC is denoted by small b and length AB is denoted by the notation small c. So there are total 6 elements involved in this. 3 sides and 3 angles. So this is about short introduction of a triangle. So please note down this, then we'll move ahead. तो अभी देखो, जब मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की बात करता हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मींस. राइट डाउन सॉल्यूशन क्विकली. हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स. तो इसका क्या मीनिंग हुआ जब मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल? उसका मीनिंग मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. राइट डाउन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मींस, solution of triangle means finding the unknown element, finding the unknown element with the help of given elements. With the help of given elements is called as solution of a triangle. इसको ऐसा बोलते हैं. तो solution of a triangle means what? So it means finding the unknown elements with the help of the given elements or the known elements. तो मतलब इसमें से अगर एंगल A नहीं दिया है बट इफ सम डेटा इज गिवन, एंगल BC दिया है तो एंगल A फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर साइड्स नोन है तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल्स नोन है तो वी कैन फाइंड आउट साइड ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है, ऑल दीज कॉम्बिनेशन मींस इट इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स. तो इसको हेडिंग में कभी कभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स भी बोला जाता है.
this is also sometimes known as properties of triangles. This is also known as, यहाँ पे लिखो अभी, properties of triangles. Properties of triangles. Solution of triangles भी बोलते हैं इसको, जनरली तो solution of triangles ही बोलते हैं, but sometimes they are also known as properties of triangles. So I hope everyone has written this. चलो अभी इसमें कुछ important rules है, वो हमें याद रखना है problem solving के लिए. Proof I don't discuss it right now. First we are going to write down some rules that are required for problem solving, और फिर problem solving करेंगे. ठीक है, derivations we will see it later on. ठीक है, shall I rub this off everyone? Just give me the clearance. Yes. Okay. ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, चलो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट पे हटा देता हूँ. अभी ये ट्रायंगल वाला पार्ट चाहिए तो मैं आपके सामने रखता हूँ, एंड आई जस्ट रब दिस ऑफ. इफ यू वांट फॉर योर रेफरेंस आई जस्ट कीप दिस ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ यू. अभी सबसे पहले जो हमें याद रखना है रूल, ठीक है, दैट रूल इज नथिंग बट, राइट डाउन रूल नंबर 1. फर्स्ट रूल लिखिए आप, दैट इज नथिंग बट साइन रूल. See, all these rules are very important. Without this हम problem solving का सोच भी नहीं सकते. तो चलो write down first heading लिखो sine rule. Now write down what does the sine rule says. A upon sine A is equal to B upon sine B sorry, is equal to C upon sine C. Sine rule says A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C. Now, what does this rule says? कि sine of the angle of a triangle. I hope you have written this. So this rule says that sine of the angle of a triangle is always proportional to the opposite side present. Is always proportional to the opposite side present. So sine of angle A, या आप ऐसे भी कर सकते हो A upon sine A. This ratio is same as B upon sine B, and this ratio is same as nothing but C upon sine C. ये ratio equal है, and let this ratio, we call this, let this ratio be equal to some constant K. K is what? K is some non-zero constant. So equal to K लिख लो आप. So I repeat, sine rule says sine of the angle of a triangle is proportional to the opposite side to it. तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C upon C equal to K भी लिख सकते हैं, but generally हम इसको याद रखते हैं ऐसा, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C, and this is equal to K, where this K is nothing but non-zero constant. This is some real number, कोई real number है. अच्छा, अभी ये जो साइन रूल है इसके हमें डिफरेंट फॉर्म्स लगते हैं. जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं ना, तो इसके हमें डिफरेंट फॉर्म्स लगते हैं. अच्छा, याद रखना बहुत आसान है. साइन ऑफ एंगल ए, इट इज स्मॉल a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए. साइड बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बी, एंड साइड सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी. बहुत सिंपल है, याद रखना इक्वल टू के. अभी इसके डिफरेंट फॉर्म्स कैसे है? इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई a अपॉन साइन a इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर लिखो नेक्स्ट लाइन पे, देयरफॉर फ्रॉम हियर स्मॉल a इज नथिंग बट इक्वल टू k साइन a. See, they all ratios are equal, all the ratios are equal, and let that equal ratio be equal to k, some constant. तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो स्मॉल a का वैल्यू क्या आएगा? k इंटू साइन a आएगा ना, यस और नो? फिर उसके बाद स्मॉल b का वैल्यू क्या आएगा? तो स्मॉल b इज नथिंग बट इक्वल टू k इंटू साइन b. ये अलग अलग फॉर्म्स है उसके. एंड स्मॉल c इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ एंगल c. और चाहिए तो इसके ऊपर आप बॉक्स डाल दो, and put a box over this.
तो स्मॉल a इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ एंगल a, स्मॉल b इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ एंगल b एंड स्मॉल c इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ एंगल। अच्छा, सिमिलरली दूसरा फॉर्म देख लो आप। अभी से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से मुझे साइन a का वैल्यू चाहिए, या यहाँ से भी देख लो आप, इफ आई वांट द साइन ऑफ एंगल a, तो इट इज नथिंग बट a बाय k। इट इज वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टूड। साइन a को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखो आप। तो साइन ऑफ एंगल a इज a बाय k। चलो टेल मी व्हाट विल बी साइन ऑफ एंगल b फ्रॉम हियर। B by K. Absolutely, it will be b by k, exactly. And sine of angle c will be nothing but equal to c by k। ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, अगर ये याद रहेगा तो ये तो है ही, आएगा ही, ऑब्वियस है। so they are all different forms। ठीक है, चलो लिख लो आप। तो अभी कभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमें स्मॉल a का वैल्यू लगेगा, तो स्मॉल a का वैल्यू इज k इंटू साइन ए। कभी हमें स्मॉल b का वैल्यू लग सकता है, कभी हमें स्मॉल c का वैल्यू लगेगा। समटाइम्स वी माइट रिक्वायर साइन ऑफ एंगल a, समटाइम्स वी माइट रिक्वायर साइन ऑफ एंगल b, साइन ऑफ, तो इसके कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम्स बनेंगे। अब वो कहाँ पे क्या लगेगा, दैट प्रॉब्लम विल डिसाइड एंड टाइम विल डिसाइड। याद तो हमें सब रखना है, वी हैव टू रिमेम्बर everything that I am giving you on the board, that in writing, and each and everything is very important। लिख के हो गया कि प्लीज मेरे को बताओ आप, then we'll move ahead। और यहाँ से चलो ऐसा, अच्छा वैसा भी हो सकता है, इफ यू ऑब्जर्व, अगर ये दोनों इक्वल है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, अगर ये दोनों को सॉल्व करना है तो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट फ्रॉम हियर। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ऐसा मिलेगा, देखो दिस इज अनदर रिलेशन, साइन ए अपॉन साइन बी। साइन ए ऊपर जाएगा तो ये b नीचे आ जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू a बाई बी। चेक, दे आर इक्वल ना, तो अगर मैं इसको इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रेशियो भी इक्वल ही आएगा। So these are all the relations that we will require। Similarly, अब अगर मैं ये दोनों को इक्वेट करूं, if I equate them and cross multiply, तो ये साइन बी ऊपर चला जाएगा, तो साइन बी अपॉन साइन सी। So I was saying is sin b upon sin c is nothing but b upon c, स्मॉल है ये। और सिमिलरली अगर ये दोनों को इक्वेट करेंगे, इफ आई इक्वेट देम, देन व्हाट विल हैपन, तो साइन ए अपॉन साइन सी, साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू ए बाई सी। अगर ये दोनों को इक्वेट किया तो ये मिलेगा, ये दोनों को इक्वेट किया तो ये मिलेगा, और ये दोनों को इक्वेट किया तो ये मिलेगा, तो ये और एक रिलेशन बन गया। So these are the different forms of same sign rule। चलो, have you finished writing everyone? हो गया लिख के आपका ये? Now let us write down the next rule। Yeah, okay, fine। अभी next rule हम लिखते हैं, that is nothing but cosine rule पे आते हैं हम हमारे। ठीक है, अब मैं इजी तरीका आपको बताऊंगा याद रखने का। ठीक है, now I just rub off this constant that is available so that I will get space। एंड ये भी मैं शॉर्टकट जरा रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा जगह मिल जाए मुझे लिखने के लिए। चलो, नाउ साइन रूल हो गया, बोर्ड पे रख रहा हूँ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल, दैट इज नथिंग बट कोसाइन रूल। फर्स्ट हो गया साइन रूल, सेकेंड रूल आप लिख लो, दैट इज नथिंग बट कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा। प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, एब्सोल्युटली राइट नाउ एट दिस स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो फॉर्मूला फॉर कोसाइन ऑफ एंगल है, दैट इज कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। राइट डाउन,
cos of angle A is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc. अच्छा, अभी इसको याद रखने का तरीका देखो, बाकी के तो दो फॉर्मूलेज आप खुद भी बता दोगे अगर मैं आपको याद रखने का तरीका बता दूं. सी इट इज cos ऑफ एंगल ए. अब क्योंकि यहाँ पर एंगल ए प्रेजेंट है, माइनस में ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी आएगा और यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे भी बी सी आएगा. दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर. एंगल ए यहाँ पे है तो साइड ए स्क्वायर इधर गया माइनस में, बी सी आप किधर भी लिख लो, बी इधर सी इधर सी इधर बी इधर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में बी इंटू सी. दिस इज हाउ यू मेमोराइज द फॉर्मूला. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लिखते हैं सेकेंड वन, कॉस ऑफ एंगल बी. तो कॉस ऑफ एंगल बी में क्या होगा, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. देखो एंगल बी है तो सब्ट्रैक्शन में साइड वाला गया बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2ac. चलो नाउ इफ एनीवन इंटरेस्टेड इन टेलिंग द फॉर्मूला फॉर cos c, प्लीज रेज योर हैंड. वर्चुअल A हैंड. square plus B square minus C square divided by 2AB. यस एब्सोल्युटली परफेक्ट. देखो आपको याद हो गया, फॉर्मूलेज भी याद हो गए आपको. ठीक है ना, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बट फॉर्मूलेज याद हो तो ट्रिक से याद रखोगे तो बहुत आसान है. तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2ab. ये हो गया cos c. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. तो कोसाइन रूल, cos ऑफ एंगल ए, cos ऑफ बी एंड cos ऑफ सी, ये तीन फॉर्मूलेज है. ठीक है, चलो अभी ये कोसाइन रूल हो गया. अभी थर्ड रूल लिखते हैं हम, प्रोजेक्शन रूल. राइट डाउन प्रोजेक्शन रूल. इसका भी ट्रिक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत ले लो, लिखते जाओ बस. राइट डाउन प्रोजेक्शन रूल. ओके, नाउ पे अटेंशन टू माय एक्सप्लेनेशन. तो फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो बाकी के दो. प्रोजेक्शन रूल में सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, अब वो कैसे बना रहा हूँ मैं, आप देख लो. दिस इज वे टू रिमेम्बर. ठीक है, इफ इट इज स्मॉल ए, पे अटेंशन, देन यू राइट डाउन. इफ इट इज स्मॉल ए तो मैं राइट हैंड साइड में बी लिखूंगा, स्मॉल बी. अच्छा, अभी स्मॉल बी लिखा तो इट विल बी कॉस ऑफ एंगल सी. स्मॉल बी लिखा तो कॉस ऑफ एंगल सी, प्लस हियर इट विल बी स्मॉल सी एंड इट विल बी कॉस ऑफ एंगल बी. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में साइड ए है तो एंगल ए राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा. एंगल ए राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए है ऑलरेडी. ऐसा याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको. एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी. स्मॉल बी लिखा तो कॉस ऑफ एंगल सी, प्लस स्मॉल सी के साथ कॉस ऑफ एंगल बी. तो बी के साथ सी, सी के साथ बी, ऐसा आपको याद रखना है. और लेफ्ट हैंड साइड में ए है. ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन नाउ. See, these are all tricks to remember them. I'm making it easy for you. चलो, तो anyone interested in telling me the small b का formula projection? Yes, yeah. Fine. I couldn't hear you due to connectivity issue. Yes, but somewhere I got you. So small b is nothing but equal to small a लिखा, so it is a cos c. ठीक है, प्लस इट विल बी नथिंग बट सी कॉस ऑफ एंगल ए. इंटरचेंज ए और सी इंटरचेंज करना है, स्मॉल और कैपिटल. दिस इज हाउ यू रिमेम्बर. चलो प्लीज नोट डाउन. और उसके बाद स्मॉल सी आप खुद लिख सकते हो, तो प्लीज राइट डाउन स्मॉल सी विल बी इक्वल टू व्हाट. तो वो हमारा लास्ट प्रोजेक्शन रूल रहेगा. ठीक है, अब ये प्लस है तो आप कैसे भी लिखो, डजंट मैटर. दिस प्लस दिस और दैट प्लस दिस, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है ना. एंड द थर्ड वन इज स्मॉल सी. ओके, सो एनीवन अदर इंटरेस्टेड इन टेलिंग स्मॉल सी इज इक्वल टू व्हाट? B cos A cos B. एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो सी लिखा तो ए आ गया तो ए कॉस बी. हाँ, अगर साइड ए लिखा है तो ए के साथ कॉस बी आएगा, प्लस बी के साथ इट विल बी कॉस ऑफ एंगल ए. बस खत्म हो गया प्रोजेक्शन रूल. So this is the very simple trick to remember projection rule. I have told you trick to remember the cosine rule and the sine rule.
is a divided by sin a. जो साइड है उसका साइन ऑफ दैट एंगल, उसका जो अपोजिट एंगल है उससे डिवाइड करना है, उसका जो रेशियो है, तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c. लेट दिस बी इक्वल टू k. So we have learned three very important rules that are nothing but sine rule, cosine rule, and projection rule. Total 3 rules is true. Okay. So please make a note of this. Then we'll move ahead. So after seeing the sine rule, cosine rule, and the projection rule, कुछ और formulas हमें required है, and that we have done it in standard 11. But I prefer you, and you should write it down. I give you in writing. ठीक है. तो इसी heading में आप लिख लो ये जो formulas है, they are nothing but trigonometric functions. Write down trigonometric, short में लिख रहा हूँ मैं. Okay, I hope you can hear me now. Trigonometric functions of angles of a triangle, ऐसा heading है. और यही सेम चीज हमने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री 2 में जो लास्ट एक्सरसाइज था ना, वो इसके ऊपर बेस्ड था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, नाउ एज वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल में छोटा सा डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ. देयर आर 3 एंगल्स. तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. अब तीनों एंगल्स को ऐड करोगे तो सम विल बी ऑलवेज 180 डिग्री, कौन सा भी ट्रायंगल रहने दो. तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. ठीक है. तो चलो राइट डाउन द फॉर्मूलाज दैट आर रिक्वायर्ड अंडर दिस. तो फर्स्ट फॉर्मूला आप लिख लो, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी. शायद से जब हम लिखेंगे तो आपको याद आएगा. ओके. सेकेंडली वी नीड टू रिमेंबर साइन ऑफ एंगल b प्लस c इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ एंगल a. अभी याद रखने का ट्रिक देखो आप. साइन फंक्शन है, a प्लस बी है, तो इधर c आएगा. साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ c. साइन ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू साइन ऑफ a. एंड फाइनली जो थर्ड वाला आएगा, वहां पे चलो और फॉर्मूलेज भी लिखने हैं मुझे. तो थर्ड फॉर्मूला, चलो आई राइट डाउन ओवर हियर, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं. थर्ड फॉर्मूला जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट साइन ऑफ c प्लस a. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस इक्वल टू? एग्जैक्टली. तो इट इज नथिंग बट साइन ऑफ एंगल b. जो एंगल मिसिंग है वो उधर लिखने का विद द साइन फंक्शन. दिस इज हाउ यू रिमेंबर. ठीक है. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. नाउ द फोर्थ. अभी कॉस फंक्शन पे आते हैं. तो कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस c होता है. देन फिफ्थ वन. ठीक है. कॉस ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू माइनस कॉस a. एंड द सिक्स्थ वन इज नथिंग बट कॉस ऑफ c प्लस a is equal to minus cos b. तो ऐसे टोटल 6 फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं. अगर साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन ही रहेगा बट ऑल पॉजिटिव, और एंगल चेंज हो जाएगा. जो एंगल मिसिंग है वो इधर आएगा. अगर कॉस फंक्शन है तो कॉस फंक्शन ही रहेगा बट उसके साथ माइनस साइन आएगा और एंगल थर्ड वाला आएगा. नाउ ये तो टोटल ये 6 फॉर्मूलेज हो गए. अभी नाउ इफ आई डिवाइड दिस बाय 2, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा. नाउ रिकलेक्ट, अलाइड एंगल बोलता है जब पाई बाई 2 होगा तो साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन, वो रूल है. तो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, तो ये 6th हो गया राइट. अभी आप 7th लिखो, फॉर्मूला नंबर 7. या चलो इससे एबीसी से रिलेटेड, चलो 1 2 3 तो ऑलरेडी दिया होगा ना. चलो राइट डाउन, कंटिन्यू द 7th वन. साइन ऑफ a प्लस b बाई 2. तो कैन एनीवन टेल मी दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? Sin c by
it will be cos c by 2. ठीक है, sin of a plus b by 2 will be nothing but cos c by 2 हो जाएगा, sin changes to cos. ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखो sin of b plus c by 2, so this will be nothing but cos of a by 2. चलो नंबर दिया है ना हमने इसको, 7th हो गया, तो 8th one, then the 9th one, and that will be nothing but sin of c plus a by 2, so that will be nothing but cos of b by 2 हो जाएगा. ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. फिर 9th हो गया, 10th वाला. अभी cos फंक्शन पे आते हैं, तो cos of a plus b by 2 is nothing but equal to sin c by 2 xi 11th, cos of b plus c by 2 is equal to sin of a by 2, and the 12th and the last formula is nothing but cos of c plus a by 2 is nothing but equal to sin of b by 2. हाँ, अभी प्लस में आप कैसे भी लिखो, a plus b by 2 लिखो या b plus a by 2 लिखो, डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो अब सारे फॉर्मूलेज देखो, दे आर फॉर प्लस, a plus b, b plus c, c plus a, सब प्लस के लिए है. a plus b by 2, b plus c by 2, सब प्लस के लिए, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. तो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज 12 फॉर्मूलेज, और ये हमें यूज करने हैं व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ना इन द नेक्स्ट सेशन. तो ये सब हमें यूज करने हैं डायरेक्टली, एंड वी हैव ऑलरेडी यूज्ड देम इन स्टैंडर्ड 11. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम करेंगे. अच्छा, अभी आपके रेफरेंस के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ. तो बाय चांस इफ एनीवन इज वाचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. अभी ये वाला समझा देता हूँ. चलो, cos ऑफ c प्लस a माइनस cos b कैसे हो गया. तो ये वाला जो फॉर्मूला है 6th वाला, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट आउट ओवर हियर. ठीक है, नाउ यू ऑब्जर्व cos ऑफ, नाउ c प्लस a, नाउ यू सी a plus b plus c is pi. So from here c plus a will be nothing but pi minus b. ये देखो, ये वाला फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहिए तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन, cos ऑफ c प्लस a माइनस cos b कैसे हो गया. ठीक है, तो c प्लस a is nothing but pi minus b, and we all know that cos of pi minus theta is minus cos theta. देखो हो गया. ट्रिक तो मैंने समझा दिया, बट कैसे आया वो भी समझा दिया मैंने. ठीक है, चलो अब ये एक समझा देता हूँ. वन, रेस्ट इज ऑल अंडरस्टूड. I will explain this one. Okay, now see, cos function will remain same, c plus a by 2. So from here c plus a by 2 is nothing but what? So it is nothing but pi by 2 minus b by 2. देखो आप, c plus a by 2, तो ये b by 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, so it is pi by 2 minus b by 2, and we all know that cos pi by 2 minus theta is nothing but sin theta. तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा sin b by 2. देखो आ गया ना, sin b by 2. तो दिस इज हाउ वी गेट दीज फॉर्मूलेज, बट ट्रिक मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ. यू रिमेंबर द ट्रिक. ये प्रोसीजर की जरूरत हमें नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे cos of c plus a, we will directly write down minus cos b. किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. So all these formulas are required for problem solving. Sine rule, cosine rule, projection rule, and ये जो triangle related formulas है, they are all very 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 compulsory and important. And I hope you must have written them by now. Is it done, students? लिख के हो गया आपका? Yes. Okay.